ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ زور سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا الہی یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پر جو دل پر اثر کرے، گرچہ انداز بیاں میرا اتنا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تمہارے دلوں میں میری بات۔ گرامی قدر عزیزان ملت، نوجوانان اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام اور باہر سے آئے ہوئے مہمانان عظام، الحمدللہ حضرات جامعہ عربیہ ناصر العلوم کا پروگرام صبح سے سن رہے ہیں۔ مسابقۃ القرآن الکریم آپ حضرات کے سامنے رونما ہو رہا ہے۔ اللہ کی مرضی کے کچھ موسم سازگار نہیں ہے، لیکن اب الحمدللہ موسم سازگار ہو چکا ہے۔ میں بڑے ہی ادب اور احترام سے گاؤں کے باشندگان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ جلد سے جلد پنڈال کے اندر تشریف لے آئے۔ بھئی یہ بچے خاموش ہو جائے، اگر بچے خاموش نہیں ہو گئے تو مجھ سے بات کرنا بہت مشکل ہے۔ بچے خاموش ہو جائے، بات پلے نہیں پڑے گی۔ اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے میرے ذہن میں کوئی بات ڈال دے اور آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ ہو جائے۔ اس لیے بچے خاموش رہے۔ اور عورتوں کے لیے الحمدللہ جناب قاری محمد ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مدرسے میں انتظام کیا ہوا ہے بڑا اچھا، اس لیے میں اپنی مائیں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں تشریف لے جائے۔ اور جو مہمانان اعظام مدرسے کے اندر ہیں، یہ جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، اس لیے کہ ہم سب کے کرم فرما بقیت السلف، یہ جو کہیے کہ اسلاف کا نمونہ، اسلاف کی نشانی، استاد العلماء والصلحاء، صوفی وقت حضرت اقدس حضرت مولانا اسرائیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ اس علاقے کی بہت عظیم ترین شخصیت ہے، اور یہ علاقہ آپ کی علمی صحبت سے اور آپ کی علمی برکات سے بہت اچھی طرح منور ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ حضرت والا اس پورے علاقے کی اللہ کا شکر احسان ہے، ذمہ داری اور سرپرستی نبھا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار استاد محترم کو لمبی عمر نصیب فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت ہم سبھی کے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ ٹوڈے کے رہنے والوں، اگر ایسے عالم دین کی قدر نہ کی جو آپ کے بیچ بڑوت سے چل کر کے تشریف لے آئے ہیں، اور میرے بہت سارے علماء تشریف فرما ہے، میں سبھی کا نام نہیں لے سکتا، قاری محمد ارشاد صاحب اور قاری محمد شوقین صاحب، اللہ رب العزت نے ان کا نام بھی بڑا اچھا رکھا ہے، ایک کا نام شوقین اور ایک کا نام ارشاد۔ جب ارشاد اور شوقین کا ٹکراؤ ہوتا ہے پھر اللہ کی طرف سے نصرت الہی اتر جاتی ہے۔ آپ جب مشاق ہو جاتے ہیں کسی چیز کے، جب آپ کا عشق قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، جب آپ کا دل اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، پھر یہ مجلس عند اللہ مقبولیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اور ہم سب کے کرم فرما
جو اس سرزمین پر الحمدللہ ایک زمانہ دراز تک خدمت انجام دیتے رہے اور ابھی بھی ان کے مشوروں سے خدمت چل رہی ہے اور اسی نہج پر کام کر رہے ہیں، ہم سب کے کرم فرما۔ مخدوم گرامی حضرت اقدس استاد مکرم حضرت مولانا شعیب عالم صاحب دامت برکاتہم العالیہ الحمدللہ اس جامعہ کے روح روا رہے ہیں اور انہی کی برکت سے پروردگار عالم نے اس گاؤں کے اندر حفاظ کرام جتنی کثرت کے ساتھ موجود ہیں کسی گاؤں کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتے۔ تعریف کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، آپ اس جامعہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی رات اور دن پروگرام میں رہتے ہیں الحمدللہ اور بہت سارے مدرسوں کا دورہ کرتے ہیں، لیکن پڑھنے کا جو انتظام، پڑھانے کا جو انتظام، طلباء کے مستقبل کا جو انتظام اور کس انداز سے طلباء کو نکھارنا چاہیے، کس انداز سے قرآن پڑھانا چاہیے، کس انداز سے قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، یہ معصوم طلباء الحمدللہ آپ کے سامنے سایہ فغن ہیں اور آپ ہر ایک طالب علم سے قرآن سن رہے ہیں۔ کل سے یہ مسابقہ چل رہا ہے، ایک سے بڑھ کر کے ایک، وفوق کل ذی علم علیم، اللہ کا نظام ہے کہ ہر ایک علم والے سے بڑھ کر کوئی نہ کوئی علم والا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور باشندگان محترم، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ پروردگار نے آپ کے جامعہ میں اور آپ کے مدرسے میں اس نوجوان شخصیت کو جب جلوہ فروز فرمایا ہے اور یہ رات اور دن ان طلباء کے لیے محنت کر رہے ہیں، کس انداز سے طلباء کو چمکا رہے ہیں۔ ایسے ہی نہیں پوزیشن آتی، ایسے نہیں مولانا غلام مستانوی کے یہاں کامیاب ہوا جاتا، ساری دنیا سے طلباء پہنچتے ہیں، ساری دنیا سے طلباء آتے ہیں، تمام بچوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک طالب علم آیا ہوا ہے، کوئی دارالعلوم دیوبند سے آ رہا ہے، کوئی مظاہر سے آ رہا ہے، کوئی ہاپوڑ سے چل کے آیا ہے، کوئی دارالعلوم حسینیہ سے جا رہا ہے، کوئی ہرسولی کا طالب علم ہے، کوئی جامعہ فلاح دارین کا طالب علم ہے۔ الغرض اس علاقے کی جو ہونہار شخصیتیں ہیں، ہر ایک مدرسے سے وہاں طلباء پہنچتے ہیں، لیکن بخدا ہر کسی طالب علم کا انتخاب عند اللہ نہیں ہوتا۔ پڑھتے تو سب ہیں، پڑھنے کا انداز سب کا اچھا ہے، محنت سب کرتے ہیں، لیکن 1000 سے اوپر طالب علموں میں نمایاں اگر کوئی نظر آتا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ پہ جامعہ کا طالب علم نظر آتا ہے جس کو زین العابدین کہا جاتا ہے، الحمدللہ 5ویں پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم آپ کے جامعہ کا رہنے والا اور آپ کے یہی کا پڑھنے والا، رات اور دن قاری ارشاد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے اساتذہ بڑی جفا کشی کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ طلباء کو نکھارتے ہیں اور کس انداز سے پورے علاقے کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ یہ بات اگر کہی جائے تو بجان ہوگی کہ جس وقت یہ لوگ محنت کرتے ہیں، رات اور دن ان طلباء کی پرواہ میں گھومتے رہتے ہیں، ان طلباء کا مستقبل کیسے چمکایا جائے، ان طلباء کے اوپر نکھار کس طرح آنا چاہیے، کس انداز سے ان طلباء کو پڑھایا جائے، بخدا صحیح معنی میں لوگ عشق رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ قرآن کے حامی ہے، قرآن سے پیار کرنے والے ہیں، تبھی تو پروردگار عالم نے ان لوگوں کو قرآن کی خدمت کے لیے چنا ہے، ورنہ 1000 لوگ گھوم رہے ہیں۔ رب جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، رب کہتا ہے کہ جب پروردگار عالم کسی سے دین کی محبت سے قبول فرماتا ہے، کسی سے دین کا کام لیتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کس مفتی کا بیٹا ہے، کس عالم کا خاندان ہے، کس مولوی کا بچہ ہے، کس رکشہ چلانے والے کا بچہ ہے۔ رب جب کس کو قرآن کے لیے قبول کرتا ہے اور کسی کو قرآن کی خدمت کے لیے چننا چاہتا ہے، پھر اس بندے کی قسمت کو چمکا دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آپ قابل مبارک ہے اس اعتبار سے، آپ پہ یہاں کا طالب علم الحمدللہ مولانا غلام مستانوی کے یہاں کامیاب ہوتا ہے، پھر بمبئی میں مسابقہ ہوتا ہے، وہاں 30 نمبر پر آتا ہے، پھر تاولی میں مسابقہ ہوتا ہے، وہاں 1 نمبر پر آتا ہے، اول پوزیشن حاصل کرنے والا طالب علم آپ ہی کا یہاں کا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ آپ کا طالب علم ہر جگہ رو
नुमा नजर आता है, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी की तरफ रवा दवा है। ये तलबा जिसको माँ बाप ने जन्म देकर के छोड़ दिया और रात और दिन ये असातिज़ा मेहनत करते हैं, सर्दियों के मौसम में, गर्मियों के मौसम में, आप पे कहानी ऐसे नहीं सुना रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ के इम्तिहान लेने के लिए आता हूँ, यहाँ के तलबा को देखता हूँ कि किस अंदाज से कुरान पढ़ रहे हैं। खुदा की कसम तारीफ की बात नहीं है, जब यहाँ के तलबा कुरान पढ़ते हैं दिल पसील जाता है, दिल फट जाता है कि अल्लाह इन मदरसे में तालिब इल्मों का इंतखाब बखुदा क्या शानदार इंतखाब है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान आलमील कुरान है, आशिक कुरान है, और किस अंदाज से कुरान की खिदमत कर रहा है, किस अंदाज से कुरान को पढ़ा रहा है। रात और दिन कुरान पढ़ाने पर अल्हम्दुलिल्लाह मशगूल रहते हैं। अल्लाह ताला इनका हामी व नासिर है। मैं आपको कहूंगा, अगर आपको अपने बच्चे कामयाब करने हैं और आपको अपने बच्चों का मुस्तकबल संवारना है, आप किसी भी मदरसे में रुख कीजिए। मैं आपको इनकार नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मदारिस में तालीम होती है, लेकिन मैं फिर यही बात कहूंगा कि जो अंदाज कुरान पढ़ाने का यहाँ है, बगैर मुबालगे के मैं ये बात कह रहा हूँ, वो बहुत कम मदारिस में देखने को मिलता है। चाहे आप खूब अच्छी तरह गौर कर लेना, खूब अच्छी तरह गौर कर लेना। 10 साल का बच्चा हाफिज कुरान हो जाता है हमारे इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे कुरान पढ़ने की क्या तरतीब है, क्या अंदाज है। आप उस बच्चे से सवालात करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। अल्लाह इन बच्चों को जनाब कारी इरशाद साहिब ने क्या तावीज खोल करके पिलाया है, किस अंदाज से, किस हौसले से, किस इन्हिमाक के साथ ये तलबा अल्हम्दुलिल्लाह जवाबात देते हैं। आदमी इनको दाद देने पर मजबूर हो जाता है। इसलिए मेरे अजीजों मैं आपसे कहूंगा, आप रात और दिन अपने मदरसे का ख्याल फरमाएं। अगर आप रात में ये तलबा और ये असातिज़ा आवाज दे, रात में आप लब्बे कहे, इन साहिब कुरान की खिदमत के लिए आप 24 घंटे तैयार रहे, मैं कहूंगा रब्बे कायनात का दरबार लगा हुआ होगा। रब्बे कायनात कहेगा, कहां है वो मेरे मासूम मासूम बंदे जिनको कुरान पढ़ाने के लिए ये असातिज़ा रात और दिन मेहनत करते हैं, आपके मुस्तकबल को चमकाने के लिए। अल्लाह ताला के यहाँ यही तलबा हमारी निजात के लिए काफी हो जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों मैं आपसे कहूंगा, आप अपने तलबा का ख्याल फरमाए, अपने मदरसे का ख्याल फरमाए, जान से, माल से, ईमान से, तमाम चीजों से ख्याल फरमाए। खुदा की कसम जो उलमा का ख्याल फरमाता है, जो उलमा का साथ देता है, जो इन तलबा का ख्याल फरमाता है, परवरदिगार उसको किसी भी मौके पर नाकाम नहीं फरमाता। इसलिए जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, कुन आलिमा, या तो आलिम बन जा, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाने वाले बन जाओ, औ मुतअल्लिमन, या तालिब इल्म बन जा, या तो इल्म दीन सीखने वाला बन जा, या इल्म दीन सिखाने वाला बन जा। अगर आप इल्म हासिल करने वाले भी नहीं बन सकते, अगर आप इल्म सीखने वाले भी नहीं बन सकते, तीसरे नंबर पर आका ने इरशाद फरमाया, औ मुहिब्बन, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। और चौथे नंबर पर इरशाद फरमाया, अगर आप आलिम नहीं बन सके, अगर आप इल्म सीखने वाले नहीं बन सके, अगर आप मोहब्बत करने वाले नहीं बन सके, मोहब्बत करते तो जरूर है, औ मुआविनन लहू, इनका ताउन करने वाले बन जाओ। 4 किस्म के लोग जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमा, या तो आलिम बन जाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, साहिबे कुरान बनाओ, आलिमे जलील बनाओ, आलिमे कबीर बनाओ, इनको कुरान के तर्जमान बनाओ। जब कुरान के तर्जमान बन जाएंगे, हो सकता है आपका बच्चा इस पूरे इलाके के लिए काफी हो जाए और वो कौम मिल्लत की खिदमत करता रहे। इस आलिम के तुफेल अल्लाह ताला सारे कायनात को निजाम को चला रहा है। और चौथे नंबर पर आपने इरशाद फरमाया, औ मुआविनन लहू, इनका ताउन करने वाले बन जाओ। आपके मदरसे में कितने तलबा हाफिज कुरान हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 9 या 8 तलबा हाफिज
कुरान हुए हैं, आप इनकी खिदमत करने वाले बन जाओ। 1 साल का खर्च मेरा अपनी जेब से मुकम्मल एक तालिब इल्म के लिए है। मसलन अगर 20,000 रुपए एक साल में एक तालिब इल्म का खर्च बैठता है, आप दिल खोल करके खर्च करें। आप पे यहाँ काम हो रहा है, आप अपने बच्चों का मुस्तकबल देख रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे तलाबा, ये मासूम तलाबा जिनको अभी बोलने का सलीका नहीं, जिनको अभी बैठने का सलीका नहीं, जिनको अभी बात करने का सलीका नहीं, लेकिन अगर बात आए अल्लाह के कुरान की तो फिर इनसे बड़ा कोई कार्य कुरान नहीं है। अगर कुरान आप इनसे सुनेंगे, आप कहेंगे सय्यिदुल कुरान बि अस्वातिकुम, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुरान करीम को खूब सवार करके पढ़ो, जीनत के साथ पढ़ो, ठहर ठहर करके पढ़ो। जब आप इन तलबा का कुरान सुनेंगे, आपको इनके अंदर से सय्यिदुल कुरान बि अस्वातिकुम की आवाज आएगी। ये आपके लिए सरमाया इफ्तिखार है। अगर आपने इन तलबा की कदर की, खुदा की कसम अल्लाह ताला आपको आखिरत में इसी तरह चमकाएगा। आप जानते हैं इन उलमा की कदर व मंजिलत को, आप जानते हैं इन हुफ़ाज़ किराम की कदर व मंजिलत को। मेरे अजीजों, हम रात और दिन कमाने में मशगूल रहते हैं। किस अंदाज से प्लाटिंग की जाए, किस अंदाज से तिजारत की जाए, किस अंदाज से बिजनेस किया जाए, किस अंदाज से जमीन और जायदाद को बढ़ाया जाए। अरे तुम्हारी आल औलाद को संवारते हैं, तुम्हारे बच्चों को संवारने के पीछे हैं। एक एक तालिब इल्म को उठा करके आप सुने नाज़रा कुरान करीम, हिफ्ज़ कुरान करीम 6666 आयतों को आप सुन सकते हैं बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी इंदिमाग के। तलबा आपको कुरान सुनाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, टोड्डे के रहने वालों, मैं आपसे कहूंगा कि आप काबिल मुबारक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मदरसों से जिस अंदाज से प्यार करते हैं, इसी तरह प्यार करते रहे। अल्लाह ताला आपको दुनिया व आखिरत में बेहतरीन नेमल बदल अता फरमाए। बिल आखिर मैंने कुरान पाक की आयत पढ़ी है, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। जब इंसान कुरान से प्यार करता है, ईमान से प्यार करता है, इस्लाम से प्यार करता है, तमाम चीजों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत होती है, आपकी सूरत होती है, आप पे अक़वाल होते हैं, आप पे अफ़आल होते हैं, आप पे किरदार होते हैं, आप पे कमालात होते हैं, आप पे शमालात होते हैं। फिर यही कुरान के तालिब इल्म अगर उबई इब्न काब के दरवाजे को खटखटाते हैं, जिसके बारे में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उबई कुरान पढ़ करके सुनाया जाए। उबई इब्न काब वो सहाबी है जिसको सहाबाए किराम में सय्यिदुल कुर्रा कहा जाता है, कुरान का सरदार है, कुरान का हाफिज है, कुरान को तजवीद से पढ़ने वाला है। जिसकी सिफारिश मेरे आका कर रहे हो, जिसके कुरान सुनने के लिए आसमान के फरिश्ते बेताब हो, जमीन के फरिश्ते बेकरार हो, तड़प जाते हो, बेकरार हो जाते हो। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उबई इब्न काब इक़रा कुरान करीम पढ़ करके सुनाया जाए। सुनिए आप, जब बात कुरान की आई, मेरा मौजू इस तरफ नहीं था लेकिन बदल गया आप हजरात की तवज्जुहात को देख करके। जब बात कुरान की आई तो आपको कुरान के ऊपर बताता चलो। उबई ने कहा, आपको कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उबई कुरान पढ़ करके सुनाओ। उबई ने कहा, बड़े होशियार साहबी है, उन्होंने कहा अल्लाह सम्मा का या रसूल अल्लाह, क्या परवरदिगार ने मेरा नाम लेकर के कहा है, क्या मेरा नाम लिया है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाँ, अल्लाह ने तुम्हारा नाम लिया है और तुम्हारा नाम लेकर के कहा है कि उबई से कुरान पढ़वाया जाए। मेरे अजीजों, आप गौर कर सकते हैं, जिसका कुरान सुनने के लिए खुद परवरदिगार आलम डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिब्राइल के हवाले आकाए रहमत को हुक्म कर रहा हो, और जिसका कुरान सुनने के लिए इमामुल अंबिया जिस सादे गिरामी पर कुरान नाजिल हो रहा है, अगर कुरान को दिल से पढ़ा जाता है, अगर कुरान को मोहब्बत से पढ़ा जाता है,
फिर यही कुरान इंसान के लिए तासीर का सबब बन जाता है, निजात का जरिया बन जाता है। जब उबई इब्न काब कुरान पढ़ते हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। मेरे ऊपर नाज़िल होने वाला कुरान ये वो कुरान है जब आसमानी किताबें आ रही है, कोई पाबंदियां नहीं है, जिन्नात किसी तरह आसमानों पर घूमते रहे, लेकिन जब कुरान को उतारा जा रहा है, जिन्नातों को दौड़ दिया गया, जिन्नातों को दौड़ा दिया गया, वापस लौटा दिया गया, वापस लौट चाहिए। अब तक दाऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर ज़बूर आती रही, इंजील आती रही, तौरात आती रही, हर पैगंबर को मजबूर कर दिया गया तौरात के लिए, इंजील के लिए, ज़बूर के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मूसा 40 रोज आप कोहे तूर पर इबादत करें, तब जाकर के आपको आसमानी किताब मिलेगी। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 दिन तक कोहे तूर पर इबादत कर रहे हैं। इंजील के लिए ईसा अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया, ईसा 40 रोज तक कोई आप इबादत गाह बना ले, कोई आप इबादत गाह मुंतखब कर ले। इसी तरह ज़बूर के लिए दाऊद अलैहिस्सलाम को मजबूर कर दिया। अल-गर्ज़िये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम को, नूह अलैहिस्सलाम को 120 साहिब आसमानों से पैगंबरों पर नाजिल हुए। शीश अलैहिस्सलाम पर 50 आए, इदरीस पर 10 आए, हजरत इब्राहीम पर 10 आए, आदम अलैहिस्सलाम पर 10 आए। तमाम साहिब के लिए पैगंबरों को मजबूर किया, तमाम आसमानी किताबों के लिए मजबूर किया। लेकिन जब बात कुरान की आई, रब कहता है कुरान के लिए कोई जगह मुतय्यन नहीं है। अगर आका मक्के की गलियों में है, कुरान मक्के में उतरता है। आका उहद में है, कुरान उहद में आता है। आका खंदक में है, कुरान खंदक में आता है। आका हुनैन में है, कुरान हुनैन में आता है। अल-गर्ज़ मेरे आका अगर आयशाए कायनात के बिस्तर पर है, कुरान वहां भी नाजिल हो रहा है, कुरान वहां भी उतर रहा है। आप गौर कर सकते हैं मेरे अजीजों, ये कुरान का इम्तियाज नहीं है तो और क्या है? सोच सकते हैं आप, इस कुरान के लिए पूरी कायनात को खोल दिया गया। जब आप चाहे, जिस वक्त चाहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमी के हवाले कुरान को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल करवा रहा है। जब इस कुरान से सहाबा ने प्यार किया, जब इस कुरान से दिल लगाया, फिर हाल ये होता है अगर अबू बकर बिन अबी कहाबा है, जब कुरान के दामन में आता है सिद्दीक अकबर बन जाता है। अगर उमर इब्न खत्ताब है, फारूक बन जाता है, उस्मान है, जिन्नूरैन बन जाता है, अली है, अली मुर्तजा बन जाता है, मुआविया है, कातिब वही बन जाता है, उबैदा है, जर्राह बन जाता है। तमाम सहाबा ने कुरान से दिल लगाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी कुरान की बरकत से तमाम सहाबा को चमका दिया, आपकी जिंदगी को रोशन कर दिया। इसी कुरान के लिए सहाबा एक एक आयत को सीखते रहे, कुरान की तिलावत से माला माल होते रहे। असहाबे सुफ़ा का मदरसा मस्जिद नबवी से शुरू होता है। ये कुरान के तालिब इल्म है, कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं। तमाम सहाबा तालिब इल्म है और आप इमामुल अंबिया मुअल्लिम है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असहाबे सुफ़ा को कुरान सिखा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। फिर यही कुरान के दाई, फिर यही कुरान से प्यार करने वाले। हाल ये होता है फारूक आजम अल्लामा असीर जज़ारी ने उस्तुल गाबा फी मारिफत सहाबा में नकल किया है, जब तक कुरान के दामन में नहीं आया, कुरान का दुश्मन है, ईमान का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है, आपकी जान का दुश्मन है, आपके किरदार का दुश्मन है, आपके कमालात का दुश्मन है। लेकिन जब कुरान के दामन में आता है, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु आप मक्कतुल मुकर्रमा से चलते हैं, रास्ते में एक सहाबी मिलते हैं हजरत अबू नुहैम रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप कहते हैं कि उमर इब्न खत्ताब बड़े जोश के साथ, बड़े गुस्से के साथ, बड़े जाओ चलाल के साथ कहाँ जा रहे हैं? उमर इब्न खत्ताब कहते हैं कि आज उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कत्ल करके आऊंगा, आप पर सर काट के आऊंगा जिसने हमारे खानदान में तफरीक पैदा कर दी है, जो कुरान का दाई है, जो कुरान का रखवाला है, जो कुरान सिखाने वाला है, आज उसका सर काट के आऊंगा। अबू नुहैम कहते हैं कि मियां पहले अपने घर की जाकर के खबर ले लो, आप
आपकी बहन फातिमा ईमान के दामन मा चुकी है, कुरान के दामन मा चुकी है, कुरान को अपना चुकी है। जाओ पहले अपनी बहन के पास जाओ, बाद में रसूलुल्लाह के पास जाना। चुनांचे जिस वक्त उमर इब्न खत्ताब ने बात सुनी, सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खुल जाता है। बहन कुरान की तिलावत कर रही है, बहनोई कुरान की तिलावत में मशगूल है। चुनांचे दरवाजा खोल दिया गया। आपने जोरदार तमाशा फातिमा को मारा। उलमा ने लिखा है, तफासिर की किताबों में अल्लामा हिशाम ने सीरत हिशाम में बयान किया है, इतनी जोर से थप्पड़ मारा आपके चेहरे से खून निकल जाता है। बहन कहती है कि भाई जिस छाती का दूध तूने पिया है, मैंने भी उस छाती का दूध पिया है। जिस माँ के पेट से जन्म तूने लिया है, मैंने भी उसी माँ के पेट से जन्म लिया है। मेरी जान जा तो सकती है, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं, पीछे नहीं हट सकती। कुरान के दामन में आ चुकी हो, कुरान को अपना चुकी हो। फिर अपने बहन को इसी तरह गिरबान पकड़ के उठाया, जमीन पर कई बार देके मारा। कुरान के दामन से प्यार करने वाले पीछे नहीं हटते, अपनी जान का सौदा कर जाते हैं, चैलेंज कर देते हैं कि मियां हमारे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए, हमारे पांव काट दिए जाए, जबान काट दी जाए, हाथ काट दिए जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, पीछे नहीं हटेंगे। फारूक आजम कांप जाते हैं। यही वो फारूक है जब कुरान की तासीर को देखता है, कहता है मेरी बहन कुरान को मंगवाया जाए। बहन कहती है कि भाई आप शिरक के अंदर मुब्तला है, अभी आप काफिर है, आपके हाथ में कुरान नहीं दिया जाएगा। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। रब कहता है कुरान को नापाकी की हालत में नहीं छुआ जा सकता, पाकीज़गी के साथ कुरान को छू सकते हैं। आप वुजू करके आए, वुजू कराया गया, आपको गुस्ल करा गया। बाज रिवायत के मुताबिक आपने कुरान पाक को लिया, कहा कि बहन जिस कुरान के लिए तो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए तैयार है, उस कुरान को खोला जाए। फारूक आजम के हाथ में कुरान आता है। रब कहता है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। जब आप इस आयत को देखते हैं, आप पर तारुफ होता है, रब पर तारुफ होता है, आप रब के तारुफ से माला माल होते हैं। बेशक हम ही अल्लाह है, हम ही है मुश्किल कुशा, हम ही है हाजत रवा, हम ही है बिगड़ी बनाने वाले, हम ही है बिगड़ी तोड़ देने वाले। फारूक आजम कांप जाते हैं, कहते हैं मेरी बहन रस्सियां मंगवाई जाए, सुनछीरें मंगवाई जाए, मेरे पैरों में डाल दी जाए और मुझे आकाए रहमत के कदमों में छोप दिया जाए। यही वो फारूक है जब कुरान के दामन में नहीं आया। आपका दुश्मन, आपकी जान का दुश्मन, आपके दीन का दुश्मन जब कुरान की दौलत से माला माल होता है, फिर कहता है मुझे आकाए रहमत के कदमों में डाल दिया जाए। चुनांचे चंद लोग आपको लेकर के चलते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस के करीब होते हैं, आकाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह उमर इब्न खत्ताब आ रहा है। आका ने इरशाद फरमाया आने दो, अगर अच्छे इरादे से आ रहा है अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदेद, उसका आना मुबारक हो। और अगर गलत इरादे से आ रहा है उसी का सर होगा और उसी की तलवार होगी। मेरे अजीजों आप फोड़ कर सकते हैं। जब आका के कदमों में जाता है, फारूक कहता है या रसूल अल्लाह कलीमा पढ़वाइए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। गौर कीजिए आप, यह कुरान की तासीर नहीं है तो और क्या है। बड़े बड़े सहाबा जब कुरान की तासीर से, कुरान की बलागत से, कुरान के फलसफे से माला माल हुए, कुरान को मानने पर मजबूर हो गए। और इसी पर बस नहीं किया, जब ये फारूक कुरान के दामन में आता है, फिर परवरदिगार आलम आपको कमालात देता है, आपको उन चीजों से नवाजता है। मेरे और आप पे आका हुदूद हरम के अंदर है, आप मकाम इब्राहिम का तारुफ करा रहे हैं। अभी आप पर कोई वही नहीं आई है, अभी आप पर कोई कुरान की आयत नहीं आई है। आप कहते हैं फारूक ये मकाम इब्राहिम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों के निशानात उस पत्थर के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी उसको खूब जी भर के जियारत से देखा है। बहरहाल फारूक आजम जब मकाम इब्राहिम की तारीफ सुनते हैं, आकाए रहमत उसके फजाइल बता रहे हैं, उसके मनाक़िब बता रहे हैं। ये वो जन्नत से लाया हुआ पत्थर है। जब आप बैतुल्लाह की
की तामीर कर रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए, इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए अगर ऊपर को जरूरत पड़ती ऊपर को हो जाता, नीचे को जरूरत पड़ती नीचे को हो जाता। आप तारुफ करा रहे हैं मेरे आका से। फारूक कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा दिल चाहता है, उमर का दिल चाहता है इस जगह के ऊपर 2 रकात नमाज अदा की जाए। अभी तक कोई वही नहीं आई, अभी तक कोई पैगाम नहीं आया। उमर इसरार कर रहा है, रसूलुल्लाह खामोश बैठे हैं। जिब्राइल को दुआ दिया जाता है कि जिब्राइल दौड़ शाह, मेरे आका खामोश है। फारूक इसरार पर इसरार कर रहा है। रब कहता है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहीम को नमाज के लिए मुंतखब कर लिया जाए। जिब्राइल आता है कि या रसूल अल्लाह, जो फैसला उमर का रुए जमीन के ऊपर है वही फैसला उमर का अर्श मुअल्ला के ऊपर है। 18 मकामात के ऊपर कुरान में फारूक आजम की सोच बदली है। रब ने कुरान बना करके नाजिल कर दिया है। इसलिए मेरे अजीजों, आपसे कहूंगा आप कुरान से प्यार करते रहे, कुरान फॉलो से प्यार करते रहे और अपने मदरसे को अपने दिल में बसाते रहे। अपनी जान से, माल से, किरदार से, तमाम चीजों से साथ देते रहे और इसी तरह अपने तलबा को पढ़ाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस मदरसे को दिन दोगुनी रात और चौगुनी तरक्की मरहमत फरमाए और हजरत उस्ताद मुकर्रम जनाब मौलाना इस्राइल साहब दामत बरकातुहुल आलिया का साए आतिफत हमारे सरों पर ताजर कायम और दायम फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।